Hello. Yes, Good sir. morning. Good morning, students. Good morning. Morning, sir. Okay, good morning. Good morning, sir. Okay, good morning. Yesterday, I gave the homework to 3, 4 Yes, questions. All of you have completed. सर फोर्थ वाला बता दीजिए. क्या था फोर्थ वाला? और हेलो हेलो थर्ड बता दीजिए। कौन सा था तो थर्ड भाई? बता दीजिए. मुझे बताओगे तब ना कि 4. सर ए का पावर n प्लस 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर n माइनस ब्रैकेट में 27 का पावर n अपॉन 3 का पावर 3 9 का पावर n. इंटू 2 का पावर 3 9 to the इक्वल टू power n. 1 अपॉन 27. 9 to the power n. देखिए, if 9 to the power n into 3 to power 2 into 3 to the power n minus 27 to the power n upon 3 to the power 5 into 2 to the power 3 equal 1 upon 27. Find n. Find n. The value of n. You have find the value of n. देखिए, in this type question, तो first you convert, ये 3 बेस 3 है, बेस में कन्वर्ट कर दें, तो इसे हम लिखेंगे 3 to the power 2 to the power n, ऑलरेडी है 3 है, into 3 to the power 2 into 3 to the power n, and it comes minus 3, 3 are 9, 9 3 are 27, 3 to the power 3 n, and it comes 3 to the power 3 5s are 15 into 2 to the power 3 equal 1 upon 3 to the power 3. Okay, now you open this 3 to the power 2n into 3 to the power 2 into 3 to the power n minus 3 to the power 3n upon 3 to the power 15 into 2 to the power 3 equal 1 upon 3 to the power 3. Now 3n or 2n, both the base are same, power we add, and it comes 3 to the power 3n. मैं फिर इसको लिखता हूँ 3 to the power 3n into 3 to the power 2 minus 3 to the power 3n upon 3 to the power 15 into 2 to the power 3 equal to 1 upon 3 to the power 3. Next, we take common 3 to the power 3n, तो हमारा बचा क्या? 3 to the power 2 minus 1 इधर देखिए, upon 3 to the power 15 into 2 to the power 3, it comes 8, is equal to 1 upon 3 to the power 3. Now, इधर देखिए, now this आंसर आ गया ना। 3 to the power 3n
and it comes 9 minus 1. This 3 to the power goes to the 8 and 3 to the power 15. By cross multiplication, we write 3 to the power 15 upon 3 to the power 3. यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? And it comes 8, No, sir. 3 to the power 3n into 8 upon 8, and this 8 we cancel to each other, और ये पावर चली जाएगी ऊपर 15 minus 5, and it comes 3 to the power 3n, and it comes 3 to the power 10. 10. Both the base are same and equal side base are cancelled, and 3n is equal to 10. n की वैल्यू आ गई. ओह, कहीं हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया क्या? Yes, sir. है? Yes, sir. एक जगह है. अरे ये 3 है भैया, ये 3 है, वही तो मैं देख रहा हूँ कहाँ गड़बड़. ये 3 है, and that is comes 12. ये आ जाएगा 12. This is 3 to the power 3 है. 3 to the power 3. Yes, sir. 15 minus 3 comes 12, and 3 1 ja 3 and 3 4 ja 12. 4 ja 3 4 Value- to 12. the Is value equal of to 4. And that is our answer. Answer. Write down. Write down. Sir, please side. Sir, please side. Okay. Easily, इसमें कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है. You break them into सर the आपका power. वॉइस रिपीट हो रहा है. Hello. No, sir. हेलो. ऐसे एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस में आप उसको बेस के इक्वलाइज कर दीजिए. 3, ये हमारा कैसा नंबर है बता सकते हो? प्राइम नंबर. प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए. यू ब्रेक द नंबर इनटू द प्राइम नंबर्स. और बोलिए, एनी क्वेश्चन? सेकंड वाला कौन सा क्वेश्चन बताओगे तब ना, मुझे क्या मालूम. विच क्वेश्चन? सर 25 का पावर n minus 1 plus 100 equal to 5. ओके. सर वीडियो ब्लर दिखा रहा है. एक सेकंड, जस्ट अ मिनट. सर एक बार और समझा दीजिए. यहाँ देखिए, लेट अस हियर. हमने इसको ब्रेक कर दिया 3 to the power 2. 9 को हम 3 to the power 2 राइट लिख सकते हैं, to the power n. ये as it is, this is as it is. We write the 27 3 to the power 3. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 to the power n. And power to the power will always be multiply. और ये तो 27 3 to the power 3 हो गया. Now we look at here, this 3 to the power 3n कॉमन आएगा कि ये दोनों देखिए, both the base are same, power भी है, तो 2n plus n is come 3n, तो हमने ये 3n लिख दिया, and it comes 3 to the power 2 minus 3 to the power 3 upon 3 to the power 15 into 2 to the power 3. Now take common 3 to the power 3n, कॉमन लिया तो बचा क्या? 3 to the power 2 minus 1, और हम जानते हैं कि 9 minus 1 8 होता है. ऑलरेडी 8 यहाँ अवेलेबल है, and they are cancelled to each other, और हमने यहाँ कैंसिल करा दिए, and both the base are same, then power we equate, पावर को हम इक्वेट कर देंगे, and 3 4 जा. सर स्टार्टिंग में क्या लिखे हैं? कहाँ? यहाँ सर स्टार्टिंग में if लिखे हैं बेटे. और कोई प्रॉब्लम? चलिए कैंसिल कर दें अब इसको बेटा. कैन आई इरेज इट? इरेज कर दें. ये कॉमन निकल गया, 1 बचा, -1. यस. कॉमन तो लेकर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम कॉमन लेते हैं, सेम नंबर होता है तो कॉमन ले लेते हैं। ओके सर। चलिए फोन कर दिया। अब next this question. Now look at here. 25 to the power n minus 1 plus 100 equal 5 to the power 2n minus 1. Now look at here. यहाँ देखिए. Now this number goes to that side because first we convert into the same base. 5 to the power 2 to the power n minus 1 plus 100 equal 5 to the power 2n minus 1. हेलो हेलो भाई, ये डिस्टर्ब ना करें, डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे को प्रॉब्लम होगी। ओके बेटे, जो कोई अपनी आवाज म्यूट कर लो आप लोग, अगर कोई शोर वोर मचाता है तो थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब होता है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, पावर टू द पावर भी मल्टीप्लाई, तो वी राइट 2n plus minus 2 and plus 100 is equal to 5 to the power 2n minus 1. Now both the base are same, so now we transfer this number that this side, यहाँ ले जाता हूँ, तो it comes 5 2n minus 1 और हम पेन्स को इंटरचेंज कर दें and this go to the other side, sign will be changed. 2 now equal 100. यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब यहाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा सा यूं, यहाँ 2n minus 1 है, अगर 2n minus 1 आ जाए तो मेरा कॉमन निकल जाएगा, तो वी राइट हियर 5 2n minus 1 minus 5 2n minus 2, it comes 2n minus 1 into 5 minus 1 equal 100. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। हेलो, ये देखो, ये कैसे तोड़े हैं, समझ रहे हो? यस सर। कैसे तोड़े? बता दीजिए। ये देखो 5 नो सर बताइए। n minus 2, इसको मैंने लिखा 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर माइनस 2, तो मैंने इसको लिख दिया 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर माइनस 1 इंटू 5 की पावर माइनस 1। बोथ द बेस आर सेम, पावर भी ऐड, तो माइनस 2 हो जाता है। और फिर सॉरी हाँ, और फिर मैंने क्या करा, बेस आर सेम पावर भी ऐड, तो 5 इन दोनों को ऐड कर दिया 2n माइनस 1 और ये हो गया 5 1। ये देखिए कन्वर्ट कर दिया इसी रूप में। हेलो, वीडियो नहीं आ रही है? सर क्लियर है क्लियर है? प्रॉब्लम होगा। ये देखो मैंने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, समझ गए? देख रहा है ये? और फिर इन दोनों बेस को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ये वाला कॉमन लाना था 2n माइनस 1 आसानी के लिए, और ये 5 बच गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। नो सर। नो सर के कॉमन 5 की पावर 2n माइनस 1 बचा क्या, 1 माइनस 5 की पावर माइनस 1 इक्वल 100 एंड वी टेक द एलसीएम। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो वी राइट 5 टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो,
अरे यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ टेक No, द sir. एलसीएम 5 2n minus 1। हमने एलसीएम लिया 5, तो बचा क्या? 5 minus 1 equal 25 into 4. Okay, now we solve here. 5 into 2n minus 1, and this comes into 4, and this 5 by the cross multiplication goes other side, 5 into 25 into 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? यहाँ कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटे। नो सर। नो सर। अब देखिए, दिस 4 एंड दिस 4 कैंसिल टू ईच अदर, हो गया। अब देखिए 5 की पावर 2 एंड माइनस 1, एंड बोथ द बेस आर सेम, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, तो 5 2 एंड माइनस 1, both the base are same, power be at 5 to the power 3, and both the base are cancelled, 2n minus 1 is equal to 3, so 2n is equal to 3 plus 1, so 2n is equal to 4, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, n is equal to 2, and that is our answer. Write down. बोलिए। हेलो हेलो, Yes, sir. please tell me. It is clear? Yes, sir. Any problem? Yes, sir. सर वहाँ पे 5 Yes, sir. इधर क्या है? कौन सी जगह? यस यहाँ सर। यस यहाँ सर। या 1 ऊपर upon उसके 5, यहाँ सर नो सर ऊपर सर। ऊपर यहाँ यस सर। यस सर। नीचे यस नीचे सर। 2n minus 2, सर नीचे नीचे। नीचे 2n minus 1 Yes, into sir. 5 की पावर माइनस 1, ब्रेक कर दिया। माइनस 2 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 5 की पावर माइनस 1, 5 की पावर माइनस 1। क्यों? क्योंकि 2n minus 1 यहाँ था, ऐसा कॉमन बनाने के लिए, कॉमन पावर को सेम बनाने के लिए। एक 5 की पावर माइनस 1 मैंने क्या करा? निकाल दिया इस 2 में से, यस क्योंकि रूल है एक्सपोनेंट के, इफ द बेस आर सेम पावर बी ऐड, तो मैंने ये यस ऐड है तो उसको मल्टीपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी राइट इन द मल्टीपल फॉर्म आल्सो। अभी मैंने तो यहाँ सॉल्व करके सिखाया था। और बोलिए। हेलो हेलो, 100 को हमने लिख दिया, Screen 20 clear है? नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है देखा? तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला? ये यहाँ, ये 2n minus 1 है बेटे, ये तो सिमिलर है। आ गया ना समझ में? दिस नंबर इज 2n minus 1। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वी टेक द एलसीएम 5 minus 1 इट कम्स 4, और 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 25 into 4 लिखा है। मुझे मालूम था कि यहाँ 4 आएगा। हाँ, क्या हो गया? और बोलिए। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? सर स्कूल कब रीओपन होगा? सर कुछ है क्या स्कूल रीओपन्स? हेलो सर, जब होगा तो जी, मैसेज सर। आ जाएगा। अरे जी, मैसेज जी। आप लोग हमें बता दोगे? हाँ यस। सर, स्कूल हमसे स्कूल। तो यस सर होशियार मैं आप लोग बताऊंगा हैं, आपको। हम लोगों से होशियार आप लोग हैं। इमीडिएटली यू है द यस न्यूज तो बहुत तेजी से फैलेगी, उसकी चिंता मत करो। अच्छा, ये पढ़ा नहीं रहे क्या सही? अरे समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो क्लास में भी तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। दिख रही है, वीडियो आ रही है आपकी कभी कभी। वीडियो नहीं दिख रहा है? वीडियो बहुत हो रही है। सर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते वीडियो हैं ब्लर थोड़ा। हो जा रही है सर, डिजिट नहीं दिख रही है। वो आपके यहाँ सर नेट, ब्लड क्या करूं मैं? सर नेट प्रॉब्लम होगा। सर तुम्हारा अब तो मोबाइल जान, खराब होता है किसी किसी का। किसी किसी का मोबाइल खराब होता है, तो हम जैसे लोगों का मोबाइल खराब होता है। आप लोग तो बड़े महंगे महंगे वाले मोबाइल रखते हैं। चलें, ओके, कैन आई रेस?
मेरा खुद ही का खराब है। Yes, Okay, sir. I raise this question. बोलिए और पूछिए भाई, कोई है आपके पास क्वेश्चंस? अरे किसी बुक का क्वेश्चन है तो बताओ भाई। हेलो, एक्सपोनेंट पावर का Yes, क्वेश्चन। sir. हाँ बताइए, पूछिए, हम बताते हैं। यू आस्क मी, आई एम सॉल्व द प्रॉब्लम। आप पूछेंगे, हम सॉल्व करेंगे। बताइए, कोई है क्वेश्चन? नहीं, आगे चलें। Yes, sir. Okay, so now this chapter behind. Now today we start the another chapter, and that chapter is factorization. Page number 217. Please open your page 217. Open your books and the page number 217. Adarsh Giri, Adarsh Giri, आदर्श, मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? हेलो मिस्टर आदर्श गिरी, कैन यू लिसन माय वॉइस? नो आंसर। ओके, फैक्टराइजेशन। नाउ लुक एट हियर। 20 mm है तो सब किस तरह होगा एक्सपोनेंट पावर में? है किसको? 20 mm है। क्या चीज पूछ रहे हो? 20? देखा 20 एक क्वेश्चन है सर। कौन सा क्वेश्चन? Sir, the thickness of class 7 mathematics book is 20 mm. ऑफ कोर्स, थिकनेस ऑफ द क्लास इज 20 mm. दिस इज, देखिए 20 mm को हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट इज ग्रेटर देन 10, दैट मीन्स यू कन्वर्ट, बिकॉज अब ये इसके बाद डेसिमल है। 20 को आप यूं भी लिख सकते हैं 20.0 mm, एंड बिफोर द डेसिमल, दिस डेसिमल मूव एट द one digit before, and then so if you move left side, your power always comes कैसे आएगी पावर? पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? Positive. Positive left, positive. Sir, Like positive. 2.0 into 10 to the power 1 G1. millimeter, and we write 2 into 10 to the power 1 millimeter, and that is our answer. यही आंसर है। चलिए, ये देखिए k की वैल्यू मोर देन और इक्वल, बिकॉज इट इज मोर देन 1 but less than 10, your answer will be correct, and this comes 10 to the power n. My n is 1. Now factorization में देखिए अब थोड़ा factor in the class 6, you know about the factor. कोई हमें डेफिनेशन बता सकता है? व्हाट इज फैक्टर? कोई बता सकता है व्हाट इज फैक्टर? You already study in the class 6 factor. What is the factor? Anybody tell me? 1, 2, 3. Eh? But this how? बताओ बेटे। A factor is a number, is an exact divisor of that number. Exact divisor of that number. That means the multiple of the number are called factors. अगर कोई फैक्टर, देखिए इधर आपके सामने हम लिख रहे हैं 4, सॉरी मैं लिखता हूँ 6, we write 6, 2 into 3, and 2 is exactly divisible by 6, exactly divisible by 2, the value comes 3, and similarly 3 also, 6 also divisible by 3, it comes 2. That means 2 and 3 both are the factors of 6 because they are exactly divisible. These numbers, 6 is exactly divisible by 2 and 3, both of them
That means 2 and 3 are the factor of 6. That means the number are in the multiple form. They are factor of the given numbers. And 1 is the number is factor each and every number. 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 में हर एक नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं उससे. Therefore, that means 1 is the factor of each and every number, but we can't write. लेकिन उसको हम लिखते नहीं हैं, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है तो उसको ले लेते हैं. Similarly, in the algebra also, the multiple of the variables are the factor of the given expression or a variables. Okay, for now comes to the page number 218. Page number 218. What is factorization? This is the heading. I read it. When the factorization an algebraic expression, we write it as a product of factors. That means the multiples of the variables are called factors, or multiples of the expression are called factors. These factor may be a number, वो factor numbers भी हो सकते हैं, algebraical variables भी हो सकते हैं, और algebraic expressions भी हो सकती हैं. Okay, any problem? So you have underlined these line. You have underlined these line on your book with the help of pencil. अपने पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए the second paragraph. What is factorization? देखिए हेडिंग लिखा हुआ है. When we factorize an algebraic expression, we write it as the product of factors. These factors may be in numbers. वो numbers में भी हो सकते हैं, algebraical variables भी हो सकते हैं, और algebraic, and they are also an algebraic expression. So now look at here. देखिए यहाँ देखिए 25x square y. Now look at here. बेटे यहाँ देखिए on the board, this number we write 5 into 5, and this variable we write x into x, and this is y. And these number, if you divide it by 5, this variable, it is exactly divisible. 5 से divide करेंगे देखिए 5 5 is 25. इस 5 से भी करेंगे तो पूरा जाएगा, इस x से भी करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, एक ही x बचेगा. एक्सपोनेंट पावर के रूल के हिसाब से बेस आर सेम, पावर भी देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइड करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा. इस x से भी करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, y से करेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स दीज आर द नंबर, they are the factor of 25x square y. ये देखिए इसके ये factors हैं. Okay, any problem? Because the definition they, the product of the numbers, the product of the variables, or a product of the expression are called factor of the given number or a given variable or a given expression. यही है आपका. तो चलते हैं आप, हम सीधे चलते हैं. Comes to the exercise. Now पहले हम एक आध एग्जाम्पल करें. take the example number 1 first. First we take the example. कुछ examples आपको समझाते हैं. That is in your book, it is given. Look at your book, the page number 219, the example number first. It is given 12a square b plus 15ab square. इधर देखिए. Now look at here. If you write the number in the multiple form, then we say they are factor. अगर किसी भी वेरिएबल को, किसी भी नंबर को अगर आपने मल्टीपल फॉर्म में लिख दिया तो कहेंगे कि वो फैक्टर है. लेकिन ये देखिए अभी यहाँ मल्टीपल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बीच में एडिशन है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई आना चाहिए. तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं. 3 4s are 12, 3 5s are 15. Number 3 is common in both the terms. इन दोनों टर्म में 3 कॉमन है.
फिर सिमिलरली ए इज ऑल्सो कॉमन, यहाँ ए 2 टाइम्स है, यहाँ ए ऑलरेडी 1 टाइम्स है, ए भी कॉमन, बी भी कॉमन में दी है, बी यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ बी 2 टाइम्स है, तो वी टेक कॉमन 3a and b, and the left numbers or a remaining variables is 3 4s are 12, ये 4 है, a ऑलरेडी निकल गया, एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े ही है, तो ये 2 टाइम्स a इंटू a है, तो एक a निकल गया तो बचा 1a, b ऑलरेडी निकल गया तो b लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 5s are 15, a ऑलरेडी निकल चुका है तो ये लिखना नहीं है, b निकालेंगे, b 2 टाइम्स है तो एक b रह जाएगा, और देखिए ये देखिए मल्टीप्लाई में आ गया, ये देखिए मल्टीपल फॉर्म में आ गया, ओके, हेलो, यस सर, ये देखिए मल्टीपल, यस सर, देखो मल्टीपल फॉर्म में आ गया, तो डेफिनेशन के हिसाब से इफ यू राइट द नंबर और ए वेरिएबल इन द प्रोडक्ट फॉर्म और ए मल्टीपल फॉर्म दे आर फैक्टर, तो ये मल्टीपल फॉर्म आ गया, तो यही हमारा आंसर, देखिए कितना आसान हो गया। अगर आपको सर एक बार और समझा दीजिए। फैक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है, यू राइट द नंबर इन द मल्टीपल फॉर्म, तो देखिए मैंने 3 कॉमन निकल रहा है, 3 निकाला, a कॉमन निकल रहा है बोथ द टर्म्स, दोनों टर्म में, b भी दोनों टर्म, बचा क्या 3 4 जा, डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, a का डिवाइड करेंगे तो ये a बचेगा, b का डिवाइड करेंगे तो b तो निकल ही चुका है, कोई भी रहेगा नहीं, फिर इसमें 3 का डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, a का डिवाइड करेंगे तो ये निकल गया, b का डिवाइड करेंगे तो एक भी बचेगा, और देखिए मल्टीपल फॉर्म में आ गया। सर एक बार डेफिनेशन में दिखा दीजिए। अरे यार लिखिए, ये क्लास 6 का है, अ फैक्टर इज ए नंबर, अ फैक्टर इज ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, और भी लिख दीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर और द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है, यही होता है सिंपली, वेरी सिंपल डेफिनेशन। अगर किसी नंबर दिए हुए नंबर में कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड, उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो ऐसे नंबर को हम दिए हुए नंबर का फैक्टर कहते हैं, और दूसरे फॉर्म में अगर वो नंबर को हम मल्टीपल फॉर्म में लिख दें, जैसे 4 2 इंटू 2, तो 4 के फैक्टर क्या हो गए, 2 हो गया, 2 और 2 टाइम्स है, 6 के फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 के फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 3 2 टाइम्स है तो 3 हो गया, ऐसे ही दीज आर द नंबर बिकॉज वी राइट इन द मल्टीपल फॉर्म, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। नाउ कम्स टू, अब सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, चलिए, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 14.1, 14.1 पे आते हैं। अब आप समझ चुके हैं एक्सपोनेंट, आप लोगों ने एक्सपोनेंट भी पढ़ लिया है, तो ये इसका यूज़ करेंगे, कॉमन लेना सीख जाएंगे, पावर को कैसे निकाल लेते हैं। तो एक्सरसाइज 14.1, नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म, गिवन टर्म में कॉमन फैक्टर निकालना है। तो द फर्स्ट पार्ट 12x एंड 36, तो नाउ सबसे पहले हम तो फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12x, तो हम प्राइम फैक्टर में करेंगे 2 इंटू 2 4 3 जा 12 इंटू x, हो गया ना ये। नाउ 36 के 9 4 जा 36, दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 3 इंटू 3, द कॉमन फैक्टर, दीज आर द फैक्टर, ये तो फैक्टर हो गया। अब कॉमन फैक्टर, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। अब ये देखिए, ये 2 कम, दिस 2, दिस 3 ओनली, तो 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, दैट इज आवर आंसर। इसमें देखिए, इसमें कॉमन x नहीं था तो x नहीं लेंगे, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 12, आंसर। अब इसमें कोई पूछिए हमसे,
कोई भी एक पूछिए जल्दी से, अब टाइम भी होने वाला है कंप्लीट। हेलो सर 8th वाला। बच्चे, रेट वाला सर 8 सर total 8 maxi अच्छा okay, how many the maximum strength of our class is? आपके क्लास की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? कैन यू टेल मी? हेलो बेटे, आप कितने बच्चे बैठते हैं? अभी तो 52 है, इससे पहले एक बार 53 हुआ था। सर 59 50 सर 60 बाकी सर का 60 बाकी लोगों को स्कूल सर, में आके 60 पढ़ना है क्या? बाकी सर वो बच्चे सब अब लगता है क्लास में आके पढ़ेंगे। मेरे से यस सर। कब आएंगे? हमें तो पता इंतजार। नहीं। अरे उनको बोलो कि भाई हमारे से जुड़ जाए भाई। ओके ओके, हाँ कौन सा पार्ट बेटे, कौन सा पार्ट? सर 8 8 पार्ट। सर 8th। ओके ओके। 6 बता दीजिए। अरे पहले अभी एक बच्चों ने 8 पूछा, पहले बता दूं, नहीं टाइम भी ओवर होने को आ गया। 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर, और ये हो गया 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे इसके, फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। प्राइम फैक्टर में 3 इंटू एक्स इंटू वाई टू वाई इंटू वाई हो गया ना। देखो एक्सपोनेंट का रूल लगा दिए, पावर है तो मैंने ब्रेक कर दिया। फिर ये वाला फैक्टर ऑफ 10x क्यूब वाई स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y, 2 times y, and factor of 6x square y square z. Now 2 3 are 6, 2 into 3 into x into y into y into z. Now common factor CF, 2 तो है ही नहीं, यहाँ 3 भी नहीं है, this x this x this x this x this x this x this y this y this y y y y, तो only x into y into y. Therefore x to the power, base are same, power we add x square and y square, and that is our answer. ये ध्यान रखना, ये मल्टीपल फॉर्म होता है, ये मल्टीपल फॉर्म होता है, यही आंसर हो गया। ओके, so tomorrow your homework is question number 1 of exercise 4.1 complete in your homework copy, and the example number first, second, third। अच्छा ये फैक्टराइजेशन है, अगर कर सको तो ठीक है, नहीं फर्स्ट एंड सेकंड complete in your homework copy. Example first and second, and question number 1 of exercise 14.1 complete in your homework copy. Okay, today I end our this topic, and tomorrow we're discussing once again the factorization. अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछे, जो भी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लास 8 इज अ वेरी इजीएस्ट क्लास, क्लास 8 बहुत आसान है पढ़ने पर, आप लोगों को लग रहा होगा। आई होप ऑल ऑफ यू, इफ यू योर वर्क कंप्लीट वेरी सिंसियरली, नाउ दिस क्लास इज वेरी इजीएस्ट क्लास ऑफ द जूनियर सेक्शन। जूनियर सेक्शन की सबसे आसान कोई मतलब आराम वाली क्लास है, वो क्लास 8 है। इसके बाद आपको अच्छी क्लास मिलेगी क्लास 9, उसमें थोड़ा सा आपका कोर्स ब्रॉड होगा, तो टफेस्ट क्लास बनती है क्लास 9। या इसी तरह क्लास 10th इजी बनती है, इजीएस्ट, और 11th टफ होती है, और 12th आसान होती है। तो आप लोग देखेंगे अगर जो बच्चे मेहनत करेंगे, तो इसीलिए 10th वगैरह में जो बच्चे मेहनत करते हैं 9th में, तो उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू complete work very sincerely. Today